Hello student, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, linear equations. We have learned about linear equations and their solutions in the previous class. In this class, we will learn more about it, but before proceeding further, let's recall some facts again. Linear equation, an equation in which the maximum power of the variable is 1 is called linear equation. For example, this is linear equation. Solution or root of an equation, the particular value of a variable which satisfies the equation is called a solution or root of the equation. For example, the equation 4x plus 1 is equals to 9 is true for x is equals to 2. Hence, x is equals to 2 is the solution or root of this equation. देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें x की वैल्यू है 2. ओके, यानी कि x की जो वैल्यू 2 है वो सोल्यूशन है उस इक्वेशन का. रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन. Same non-zero number can be added or subtracted on both sides of the equation. Both sides of the equation can be divided or multiplied by the same non-zero number. Transposition method for solving a linear equation. Any term of an equation can be transposed to the other side of the equation by changing its sign. It means if a term has positive sign to the one side of an equation, then on the other side it will have negative sign and vice versa. देखिए जब ट्रांसपोजिशन मेथड हम यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन में तो क्या होता है, जब हम किसी भी टर्म की उसमें अगर जैसे पॉजिटिव साइन है उसकी साइड चेंज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में हो जाएगा. जैसे कि आप इसमें देखिए 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, हमने 2 को इधर लेकर आए, उसकी साइड चेंज कर दी तो वो अब माइनस में हो गया. If a term is in multiplication to the one side of an equation, then on the other side it will be in division and vice versa. इसी तरह से अगर कोई टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में एक साइड में तो दूसरी साइड आके वो डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाए. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो चलिए लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन. यू हैव एन इक्वेशन 5x minus 3x minus 1 is equals to x minus 4. You have to find out the value of x. देखिए 5x minus 3x plus 1 is equals to x minus 4. Okay. 5x minus 3x. अब देखिए हम x को ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरी तरफ तो ये माइनस एक्स हो जाएगा. माइनस 4 अपनी जगह पे ही है, अपनी साइड पे ही है. प्लस 1 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1. 5 minus 3 2, 2 minus 1 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4. यानी कि x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, -5. चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 2. 2x minus 3 by 2 minus x plus 1 by 3 is equals to 3x minus 8 by 4. ओके, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट. तो चलिए देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे. 6 यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 6 करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. एंड 3x minus 8 by 4. 6x minus 9 minus 2x minus 2 by 6 is equals to 3x minus 8 by 4. आप चाहें तो यहाँ पे कट कर सकते हैं 2 and 3. ओके, अब आप क्या करेंगे, 6x लाइक टर्म्स को साथ में रखें. -9 minus 2 by 3 is equals to 3x minus 8 by 2. 6 minus 2x 4x minus 11 by 3 is equals to 3x minus 8 by 2. अब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. आप करेंगे 2 को 4x minus 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3 को करेंगे आप 3x minus 8 से मल्टीप्लाई. Remember that we can solve linear equations containing fractions on multiplying both sides by the LCM of the denominators. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज में. फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. आप सॉल्व कीजिए. 4x minus 1 is equals to 16. 4x minus 4 is equals to 16. 4x is equals to 16 plus 4. 4x is equals to 20 and x is equals to 5.
इसी तरह से आपको बाकी सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x minus 1 by 3 is equals to x plus 2 by 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे। 2x minus 1 is equals to 3x plus 2। 4x minus 4 is equals to 3x plus 6। 4x minus 3x is equals to 6 plus 4। x is equals to 10। ओके, x की वैल्यू यहाँ से आपकी 10 आ जाएगी। Cross multiplication method for solving a linear equation. Following steps are followed to solve the linear equation. Cross multiply the terms of the given equation to obtain a linear equation. Now solve the obtained linear equation by transposition method. चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके पास है x plus 3 upon 3x plus 2 is equals to minus 5 by 2। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 फिर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 15x माइनस 10। नाउ जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 10 एंड माइनस 6। 17x इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 16 बाय 17। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपका इस तरह से होता है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यू हैव x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 बाय 5। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8, 2x प्लस 3, 5x प्लस 35, 16x प्लस 24। तो 5x माइनस 16x इज इक्वल्स टू 24 एंड जब आप 35 को उस साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो 16 माइनस 5 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 35 में से जब आप 24 माइनस करेंगे तो माइनस 11। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 11 बाय 11 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और फिर उसके बाद अपना आंसर भी चेक करना है। सो लेट्स चेक इट आउट। a माइनस 3 बाय a प्लस 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन a माइनस 2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। a माइनस 2 a माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 1 और a प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस 3, फिर आप माइनस 2 से a माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। a से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 4, फिर प्लस 1 से आप इसे करेंगे a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 4। ओके, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4। नाउ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5a is equals to 4 minus 6. Cancel. Minus 10a is equals to minus 2. Minus minus cancel. A is equals to 2 by 10 and a is equals to 1 by 5. So a की वैल्यू आपके पास आई है 1 by 5। ये तो आपने सॉल्व कर दिया। अब आपको चेक करना है अपना आंसर। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। a आपके पास इक्वेशन थी a माइनस 3 बाई a प्लस 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन a माइनस 2। ओके, आपके पास a की वैल्यू अभी कितनी आई थी 1 बाय 5, राइट। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
1/5 minus 3, 1/5 plus 4, ये आपका LHS है. 5 LCM आ जाएगा. 1 minus 15 upon 5 LCM 1 plus 20. Okay, so minus 14/5 upon 21/5. तो आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. minus 14/5 to 5/21. ये आपका कटेगा 7 से 3 and 2. तो आपका आया इधर आंसर -2/3. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. चलिए अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम. 1/5 plus 1 upon 1/5 minus 2. सो अगेन एलसीएम लेके करेंगे तो आप 5 एलसीएम आएगा. 1 plus 5 upon 5 आपका एलसीएम आया 1 minus 10. ओके, so this is 6/5 upon minus 9/5. अब ये आपका हो जाएगा 6/5 into 5 by minus 9. 2 से कटेगा, 3 से 2, 3 minus 2/3. अब ये आपका देखिए RHS -2/3 आया, LHS भी आपका -2/3 आया, दोनों इक्वल आए. दैट मीन्स आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है. Applications of linear equations. Many real-life problems can be solved easily and quickly with the help of linear equations. The practical use of equations lies in finding the values of unknown quantities from the known ones. To solve this type of a word problem, we follow the given steps. Read the problem carefully and find out what is given and what is to be determined. To represent the unknown quantity by a variable like x, y, z, etc., form a linear equation with the help of given conditions. Solve the equation by transposition method. For verification, you may check your result by putting the value of the unknown quantity in the linear equation. देखिए linear equation की applications क्या है. real life में बहुत सारी ऐसी problems आती हैं, बहुत सारी ऐसी queries होती हैं जो उन्हें हमें बहुत easily and quickly solve करना होता है, तो उसके लिए हम linear equations का help लेते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है. किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, लाइक ABCD XYZ एटसेट्रा. उसके बाद आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तरह से सॉल्व करेंगे और आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक भी कर सकते हैं. तो चलिए पहले एक देखते हैं एग्जाम्पल 5. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. 8 के मल्टीपल्स हैं 3, राइट. कंसेक्यूटिव, वो भी 1 by 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो पहले 3 मल्टीपल्स होंगे, और तीनों का ही जो सम है वो है 888. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे? चलिए हम लेट करेंगे. लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x. ओके, अब 8 के मल्टीपल हैं तो सेकेंड आपका होगा, सेकेंड मल्टीपल होगा आपका, जो फर्स्ट मल्टीपल है उसमें आप 8 प्लस कर देंगे, राइट. इसके बाद जो आपका थर्ड मल्टीपल होगा उसमें आप क्या करेंगे, x plus 60. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों ही जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के, उन तीनों का जो सम है वो है आपके पास 888. ओके, नाउ x एंड x, 3x. ओके, आपका 888 एंड आप 8 एंड 16 को प्लस करेंगे तो आपका 24 आएगा, प्लस का 24, और जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा -24. सो 3x इज इक्वल्स टू, अब माइनस करेंगे आप 468. x इज इक्वल्स टू 864/3. 3 से आप इसे कट करेंगे, 3 2 6, 3 8 24, 3 8 24. देखिए ये आपका फर्स्ट मल्टीपल आ गया है. सेकेंड मल्टीपल आप कैसे निकालेंगे? सेकेंड मल्टीपल इज x plus 8 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 288 plus 8. ये सेकेंड मल्टीपल है आपका. इसी तरह से आपका जो थर्ड मल्टीपल होगा वो क्या होगा? आपके पास है x plus 16 एंड x की वैल्यू आपके पास 288 plus 16, और इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज. आपके पास एक एग्जाम्पल है. सार्थक इज नाउ 1/2 as old his sister. सार्थक अभी जो है अपनी सिस्टर की एज का हाफ है, और
6 years के बाद ही विल बी 3/5 एज ओल्डर सिस्टर. 6 साल के बाद वो अपनी सिस्टर की एज का 3/5 हो जाएगा. देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड सिस्टर. तो सार्थक की और इसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज क्या. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. चलिए देखिए, हम लेट करेंगे सार्थक की सिस्टर की एज. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक सिस्टर. सार्थक की सिस्टर की एज है x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक. सार्थक की प्रेजेंट एज कितनी है. 1/2 ऑफ हिज सिस्टर, यानी 1/2 ऑफ x, यानी कि x/2 years. ओके. नाउ आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, एज ऑफ सार्थक सिस्टर. सार्थक की सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी. जो उसकी प्रेजेंट एज है x, उसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो 6 years. इसी तरह से एज ऑफ सार्थक. सार्थक की एज कितनी हो जाएगी. अभी जो उसकी एज है x/2, उसमें हम 6 प्लस कर देंगे. ओके. चलिए, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था. 6 साल के बाद जो सार्थक की एज है वो कितनी होगी. उसकी सिस्टर की जो एज है उसका 3/4, यानी कि चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे. 3/5 x + 6 इज इक्वल्स टू x/2 + 6. ये अब आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी बन चुकी लीनियर इक्वेशन. अब आपको उसे सॉल्व करना है, राइट. आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, 3x/5 प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 इज इक्वल्स टू x/2 + 6. अब देखिए 3x/5, अब इसे यहाँ माइनस करके ले आएंगे. x/2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 18/5. एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा. 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से. 6x 5 तो यहाँ भी 5x इज इक्वल्स टू 5. अब देखिए आपका एलसीएम आया 5. यहाँ 5 करने के लिए 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से 30 माइनस 18. x/10 इज इक्वल्स टू 30 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. x इज इक्वल्स टू 12 को 2 से करेंगे 24. ओके. तो 24 इयर्स किसकी एज आई है. सार्थक की सिस्टर की. एंड सार्थक की एज क्या होगी. देखिए, सार्थक की एज थी x/2, यानी कि 24/2, यानी कि 12 years. ओके. सो ये सार्थक की सिस्टर की एज एंड दिस इज सार्थक्स एज. चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. 1/5 ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 is equals to 4 less than 1/4 of that number. Find the number. ओके. अब आपके पास नंबर क्या है, आप लेट करेंगे. लेट द नंबर बी x. ओके. अब आपसे क्या पूछा गया. आप देखिए, 1/5 ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5. इस नंबर का 1/5 इंक्रीज्ड बाय 5 यानी 5 प्लस. अब वो किसके इक्वल हो जाता है. इज इक्वल्स टू 4 लेस देन. जब भी लेस देन होगा मतलब -4. -4 यानी इक्वल टू 4 लेस देन 1/4 ऑफ दैट नंबर. 1/4 ऑफ दैट नंबर. जब भी लेस देन बोला जाएगा आपको क्या करना है, माइनस. और कितना माइनस करना है, जो आपको दिया होगा लेस देन. एंड जब भी इंक्रीज बोला जाएगा तो प्लस करना है. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. x/5 इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4 -5. एलसीएम लेंगे 20. 4x minus 5x is equals to 9. माइनस x इज इक्वल्स टू -9 और आपका इधर मल्टीप्लाई जाएगा 20. माइनस x इज इक्वल्स टू -180. माइनस माइनस कैंसिल तो x इज इक्वल्स टू 180. यानी कि आपने जो नंबर लेट किया था वो आपका कौन सा नंबर है, 180. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 12. If the new number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54, find the original number. देखिए आपको एक 2-digit नंबर है और उसका सम है 12. अगर एक न्यू नंबर हम बनाते हैं तो जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो जो न्यू नंबर बनेगा वो एक्चुअली ओरिजिनल नंबर से 54 ज़्यादा होगा. तो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो चलिए लेट करते हैं. देखिए आपके पास
सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है आपके पास 12, तो लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स। सो आपकी 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स। ओके, तो नंबर आपका क्या बनेगा, देखिए ये आपका यूनिट प्लेस पे है x और ये आपका 10th प्लेस पे है, तो जो 10th प्लेस पे है उसको आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। सो x प्लस 120 माइनस 10x और आपका कितना हो जाएगा ये 120 माइनस 9x। ओके, ये आपका बना नंबर। नाउ ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब हमने डिजिट्स को रिवर्स करना है, यानी कि जो 1st प्लेस पे है वो 10th पे आएगा और जो 10th प्लेस पे है वो 1st प्लेस पे आ जाएगा। तो आपका नंबर क्या बनेगा, देखिए नंबर आपका बनेगा, ये आपका 10th प्लेस पे हो गया और ये आपका 1st प्लेस पे, तो 12 माइनस एक्स प्लस 10x। चलिए देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 9x। अब ये जो नंबर मिला है आपको, ये मिला है रिवर्स करने के बाद। Now according to question, (12 plus 9x is equals to 120 minus 9x plus 54। देखिए 9x, ये 9x इधर आके प्लस का हो जाएगा 120 प्लस 54 एंड ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 18x इज इक्वल्स टू 120 प्लस 54, आपके पास कितना आ जाएगा 174 माइनस 12। 18x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 1 6 एंड 1। नाउ x इज इक्वल्स टू 162 बाई 18। इसे हम कट करेंगे आपका 3 से, 3 6 3 5 15, 3 4 एंड 6 9। सो x इज इक्वल्स टू 9। आपके पास क्या आया 9, बट आपसे क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपके पास कितना था, दिस वन, यानी 120 माइनस 9x, 120 माइनस 9 और आपके पास कितनी वैल्यू आई है 9, 120 माइनस 81, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9, 11 minus 8 3। So the original number is 39. Overview. An equation in which the maximum power of the variable is 1 is called linear equation. In a linear equation, we can add or subtract the same number on both sides, multiply or divide by the same number on both sides. Any term of an equation can be transposed to the other side with the changed sign. जब कभी भी हम ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम किसी नंबर को उसकी साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीप्लाई। इफ दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम, read the question carefully and denote the unknown quantity by a variable. Then write the statement in the form of linear equation and solve. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।